Dear student, in this lecture we will discuss geometric mean. ज्योमेट्रिक मीन आप लोगों ने ऑलरेडी, अगर एफएससी के कोर्सेज आप मैथमेटिक्स पढ़ा है तो ऑलरेडी आप लोगों ने उधर डिस्कस किया है. सो ज्योमेट्रिक मीन क्या है हम डिस्कस करेंगे. ज्योमेट्रिक मीन इन दिस लेक्चर. द ज्योमेट्रिक मीन डिनोटेड बाय जीएम इज अ टाइप ऑफ मीन. ये मीन का एक किस्म है और एवरेज या एवरेज का एक किस्म है which indicate the central tendency or typical value of a set of numbers by using the product of their values as opposed to the arithmetic mean. arithmetic mean में हम sum of the quantities लेते हैं, यहाँ पे product of the quantities लेंगे which uses their sum. The geometric mean is defined as the nth root of the product of n numbers. nth root of the product of n numbers. अगर हमारे पास n numbers है तो उसका nth root लेते हैं और वो n number जो है वो product में लेते हैं. अगर 2 नंबर है तो 2 नंबर का product लेते हैं और square root लेते हैं. अगर 3 नंबर है तो 3 नंबर का product लेते हैं और cubic root लेते हैं. That is, for a set of number x1, x2 up to xn, the geometric mean is defined by द nth रूट ऑफ x1, x2, xn. ये मल्टीप्लिकेशन भी ले ले और nth रूट ले ले. द ज्योमेट्रिक मीन is used with numbers that tends to increase geometrically. That is, each number is the same multiple of the preceding one. For example, the geometric mean of 3 numbers, say 2, 4 and 8 is geometric mean is equal to 2 multiplied by 4 multiplied by 8 और cube root, यानी सेकंड स्टेप में cube root लिया गया है which is equal to 4. ये बराबर है 4 क्योंकि 64 जो है वो हमारे पास बराबर है, हम लिख सकते हैं 64 की जगह 64 पावर 3, 4 पावर 3. सो 4 पावर 3 होल पावर 1/3 इस तरह लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा. इन प्रैक्टिस इट इज़ डिफिकल्ट टू एक्सट्रैक्ट द रूट ऑफ हायर देन स्क्वायर रूट gm एज देयरफॉर कंप्यूटेड यूजिंग लॉगरिथम एंड एज गिवन बाय दिस. अगर हम लॉगरिथम यूज़ कर रहे तो log ऑफ gm इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई n log of x1 plus log of x2 plus log of xn, where we assume that all the numbers are positive, otherwise the logarithm are not defined. क्योंकि नेगेटिव नंबर के लिए ये डिफाइन नहीं है. मेरिट एंड डिमेरिट. अब ज्योमेट्रिक मीन्स के नुकसानात और फ़ायदे क्या है. मीन तो वैसे अरिथमेटिक मीन भी है, उसके भी मेरिट और डिमेरिट हमने डिस्कस किए. तो ज्योमेट्रिक मीन के मेरिट और डिमेरिट क्या है. इट इज़ यूनिक एंड बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन. फर्स्ट. Second, it gives less weight to extremely large value than does the arithmetic mean. arithmetic mean के मुकाबले में ये large value को less weight देता है, मतलब क्रेडिट हावर उसका कम होता है. Third number, it is the average to be used when rates of change or ratio are being averaged. It gives equal weight to equal rates of change. A disadvantage of the geometric mean is that it cannot be used to average number which include a zero or a negative number. ये डिसएडवांटेज है ज्योमेट्रिक मीन का. द हार्मोनिक मीन, ये भी एक किस्म है अरिथमेटिक मीन का. द हार्मोनिक मीन डिनोटेड बाय hm of a set of n values x1, x2 up to xn is the reciprocal of the arithmetic mean. ये अरिथमेटिक मीन का reciprocal यानी उल्टा of the reciprocal of the given set of observation, that is hm is equal to n divided by summation 1/x. ये उसका reciprocal हो गया arithmetic mean का. For example, the harmonic mean of the number 2, 4 and 8 is 3 divided by 1 divided by 2 plus 1 divided by 4 plus 1 divided by 8. इसका reciprocal हमने लिया which is equal to 3 divided by 7 divided by 8 which is equal to 24 divided by 7 and this is equal to 3.43. तो ये हार्मोनिक मीन का फार्मूला है और इस तरह हम हार्मोनिक मीन फाइंड करते हैं. द हार्मोनिक मीन इज यूज्ड
when observation are expressed inversely to our requirement or to their importance. For example, we may want to compare cost per unit of the product but find them expressed as unit of the product for unit price, or we may wish to compute a travel time for trip involving various distance at different speed and so need to know time per kilometer rather than kilometer per hour. For such problem, a harmonic mean is generally applicable. The harmonic mean cannot be used to average number which include a zero number. Example, a motor car travel 3 consecutive kilometer. 3 consecutive किलोमीटर चला जाता है एक मोटर है. The first kilometer at x1 35 km per hour, the second x2 48 km per hour and the third is 40 km per hour. Find the average speed of the car in kilometer per hour. Solution. अब देख ले कंसेक्चुअली, यानी एक बार जब मोटर कार स्टार्ट होता है तो 35 किलोमीटर चला जाता है, फिर 48 किलोमीटर और फिर उसके बाद 40 किलोमीटर चला जाता है. हमें एवरेज स्पीड फाइंड करना है उसी का, तो ये हार्मोनिक मीन से हम फाइंड कर सकते हैं. हियर द टोटल डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर इज कवर्ड इन 1 डिवाइड बाई x1. रेसिप्रोकल ले ले, एरिथमेटिक मीन का रेसिप्रोकल ले ले, तो ये 1 डिवाइड बाई x1 प्लस 1 डिवाइड बाई x2 प्लस 1 डिवाइड बाई x3 हो जाएगा हावर्स. सो दैट द रिक्वायर्ड एवरेज स्पीड इज हार्मोनिक मीन का जो फार्मूला है वो हमारे पास है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम. सो टोटल डिस्टेंस हमारे पास आ गया 3 और डिवाइड बाई टोटल टाइम, ये जो हमने फाइंड किया ओवर यानी रेसिप्रोकल के फॉर्म में हमने लिया, इस पे या डिवीजन कर ले. सो 3 डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई 35, 1 डिवाइड बाई 48 एंड 1 डिवाइड बाई 40, वो आप सिंप्लीफाई कर ले तो हमारे पास 40.32 आ जाता है. मेरिट एंड डीमेरिट्स ऑफ द हार्मोनिक मीन. अब हार्मोनिक मीन के मतलब जिस तरह की हमने अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और उसके मेरिट और डीमेरिट डिस्कस किए. हार्मोनिक मीन के मेरिट्स क्या है और डीमेरिट्स क्या है. तो फर्स्ट वन जो है इट इज़ यूनिक. हार्मोनिक मीन जिस डेटा का हम फाइंड करते हैं वो यूनिक एक होता है एंड बेस ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, और तमाम ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है, बेस करता है. इट गिव्स लेस वेट टू एक्सट्रीमली लार्ज वीडियो. अगर बहुत ज़्यादा कोर्स है तो उसको लेस वेट देते हैं. फॉर एग्जांपल बहुत बड़ा कोर्स है और उसको क्रेडिट हावर 2 दे दे या 1 दे दे, तो ये लेस वेट देता है. एंड मोर वेट टू स्मॉल वीडियो. और अगर कोई कोर्स फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रोजेक्ट है या प्रैक्टिकल वर्क है तो स्मॉल है लेकिन उसको वेट ज़्यादा देता है, उसको 4 क्रेडिट हावर या 5 या 6 क्रेडिट हावर देता है. देन डज द अरिथमेटिक मीन एंड द ज्योमेट्रिक मीन. It is the suitable average to be used when the ratio are being average and the numerator of the fraction from which the ratio were computed are the same for all ratio. इसका भी एक डिसएडवांटेज है. डिसएडवांटेज इसका क्या है? A disadvantage of the harmonic mean is that it cannot be calculated if any value is 0. अगर इसमें 0 वैल्यू है तो ये हम कैलकुलेट नहीं कर सकते. ज्योमेट्रिक मीन भी इसी तरह, अगर उसमें 0 वैल्यू है तो उसमें, क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेशन है. अलबत्ता अरिथमेटिक मीन में समेशन है तो उसमें अगर 0 वैल्यू है तो वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं. लेकिन ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन में अगर कोई डेटा में उसमें 0 है तो फिर वो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते. ये बात याद रखना है. थैंक यू सो मच.